हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू नयन बिहार वेस्ट चंपारण फेसबुक लाइव क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m 2m माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1 एक्स प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 5/2। क्या कंडीशन है कि m का वैल्यू निकालना है जबकि सम ऑफ रूट्स 5/2 है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the given quadratic equation of the given quadratic equation 2m minus 1 into x square plus 4m minus 1 into x plus m plus 3 equals to 0। 2m minus 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 4m minus 1 is the coefficient of x and m plus 3 is the constant term. Here alpha and beta are roots. We know sum of roots equal to minus b upon a. This implies alpha plus beta equals to minus b upon a. What is b? The b is the coefficient of x, that is 4m माइनस 1, माइनस साइन ऑपरेट करेंगे, डिवाइडेड बाई a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हिच वैल्यू इज 2m माइनस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 5/2, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 5/2। दिस इंप्लाइज माइनस 4m। अब ऐसा करते हैं, माइनस को ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस 4m प्लस 1, माइनस 4m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 5/2। दिस इम्प्लाइज नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 2 इंटू माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2m माइनस 1। दिस इम्प्लाइज, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 8m प्लस 2 इक्वल्स टू 10m माइनस 5। दिस इम्प्लाइज 10m को हम ट्रांसपोज कर देंगे। आफ्टर ट्रांसपोजिंग 10m फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट विल बिकम माइनस 18m इक्वल्स टू 2 will be transposed from left to right. Right side becomes minus 7. So m equal to minus 7 upon minus 18. m equals to minus 7 upon minus 18, minus minus cancel. So the answer is 7/18. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इक्वल्स टू एम माइनस 1 बाई एम प्लस 1 हैज रूट्स व्हिच आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन, देन एम इक्वल्स टू व्हाट। मतलब इसके रूट्स जो हैं वो क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। दैट इज लेट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? अभी तो हम इसी को लिखेंगे। राइट डाउन दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इक्वल्स टू एम माइनस 1 बाई एम प्लस 1। तो लेट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर alpha and minus alpha. Why minus alpha? Because according to the given condition
roots are numerically equal, that is alpha and alpha, but opposite in sign. First of all, we shall arrange the quadratic equation. We shall write the quadratic equation in standard form. For this, we have to cross multiply m plus 1 into x square minus b into m plus 1 into x equals to a into m minus 1 into x minus c into m minus 1. After arranging, this will become minus bm plus b minus am plus a, not curly bracket, small bracket, into x plus c into m minus 1 equals to 0. Here this is the value of a, this is the value of b, and this is the constant term. Now the sum of roots equal to alpha plus what? Minus alpha. Here roots are alpha and minus alpha, so the sum of roots alpha plus minus alpha equals to, and you know the formula, alpha plus beta equals to minus b upon a. This is the formula for the sum of roots of the quadratic equation. So alpha plus minus alpha equals to minus b upon a. Here b is this and a is this. Minus minus plus bm plus b minus am plus a divided by the value of a is m plus 1. This is the value of alpha plus minus alpha. This implies alpha plus minus alpha will become 0. 0 equals to bm plus b minus am plus a divided by m plus 1. Now by cross multiplying, 0 into m plus 1 equals to bm plus b minus am plus a. This implies ये 0 हो जाएगा. 0 equals to b minus a into m plus b plus a. This implies b minus a into m equals to क्या हो जाएगा? After transposition, this will become minus b plus a. यह ट्रांसपोज हो जाएगा, उधर माइनस लग जाएगा. अब क्या करेंगे आप? वैल्यू फाइंड करेंगे. द वैल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई व्हाट? बाई बी माइनस ए. नाउ यू कैन चेंज द नेगेटिव साइन बाई ए प्लस बी. ये माइनस को नीचे ले आइए, माइनस बी हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, मीन्स ए माइनस बी. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एम. एम क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. कांस्टेंट है एम, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 25x स्क्वायर प्लस 10kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स एंड then the both roots are equal to what? Solution. क्वेश्चन क्या है? 25x स्क्वायर प्लस 10kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके रूट्स जो है क्या है? इक्वल है. इसके रूट्स इक्वल है. तो लिखेंगे हम कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पहले जो गिवन होता है उसको हम लिखते हैं.
given quadratic equation is 25x square plus 10kx plus 4 equals to 0. ये given quadratic equation. According to the question, roots are equal. So we know now a equals to what? A is the coefficient of x square. A, this is a, this is 10k is b, and 4 is the value of c. C is the constant term, b is the coefficient of x, and a is the coefficient of x square. For equal roots, do you know the condition for equal roots? Discriminant d equals to 0. For equal roots, discriminant d equals to 0, that is b square minus 4ac equals to 0. That is b square equal to 4ac. b square equal to 4ac. This implies what is the value of b? b is 10k. So 10k square equals to 4 into 25 into 4. 4 into a into c. A is 25, c is 4. This implies 100k square equals to 400. This implies k square equal to 4. दोनों तरफ काटिए. k square equal to 4. This implies k equals to plus minus 2. For k equals to 2, the quadratic equation becomes 25x square plus 20x plus 4 equals to 0. अब इसको क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100. 100 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 10 10 10 10 या कितना हो जाएगा? 100. 10 plus 10 20. और यू कैन राइट 5x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर. ध्यान देंगे, हमने देखा पहले 25x स्क्वायर के बदले 5x स्क्वायर, 4 के बदले 2 स्क्वायर, प्लस ये हो गया a, ये हो गया b. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर होता है. एंड सो दिस विल बिकम 5x plus 2 whole square equals to 0. This implies 5x plus 2 equals to 0. This implies x equal to minus 2 upon 5. So both the roots are minus 2 by 5, minus 2 by 5. For k equals to minus 2, since the value of k was plus 2 minus 2 both. So for k equals to minus 2, the quadratic equation, given quadratic equation reduces to the form 25x square minus 20x plus 4 equals to 0. कैसे? हाउ? जब हम माइनस k का वैल्यू माइनस 2 इसमें पुट करेंगे मिडिल टर्म में तो माइनस 20 हो जाएगा. सो माइनस 20x. नाउ दिस इज इन द फॉर्म 5x square minus a square b square, and this is in the form 2ab. This is in the form a square minus 2ab plus b square. 5 to the 10 to the 20x. So this will become 5x minus 2 whole square equals to 0. This implies 5x minus 2 equals to 0. This implies x equal to 2 by 5. Okay, 5x equal to 2, so x equal to 2 by 5. So x equal to 2 by 5
कॉमा 2/5। तो हमारा क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स पॉलीगन हैज 77 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू व्हाट। तो फार्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 77, लेट द नंबर ऑफ sides of the polygon equals to n। तो द फार्मूला टू फाइंड डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू होता है NC2 माइनस n। ये NC2 क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है, NC2 इज कॉम्बिनेशन। n ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर जो सिलेक्शन बनाते हैं, n ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर सिलेक्शन बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं NC2, मतलब ये कॉम्बिनेशन। अब इसका फार्मूला होता है NCR का फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये आप जानते हैं। तो चूंकि किसी सपोज करिए कि ऐसे करके ऐसे पॉलीगन है, तो कोई 2 अपोजिट पॉइंट को मिलाकर डायगोनल बनेगा, तो 2 पॉइंट से एक डायगोनल मिलेगा, सो NC2 जितने पॉइंट्स होंगे उसमें से 2 पॉइंट को मिलाकर डायगोनल बनेगा, ऐसे करके डायगोनल बनेगा, 2 पॉइंट को मिलाकर एक डायगोनल बनेगा, इसलिए NC2 और माइनस n। अब NC2 का वैल्यू निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पहले लिखेंगे 77 इक्वल्स टू NC2 माइनस n। NC2 का वैल्यू क्या होगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 माइनस n, ऐसा हुआ। अब आप जानते हैं, यू नो फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट सो ऑन, या अकॉर्डिंग टू नीड हम n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख देंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, since the denominator is n minus 2, since the denominator is factorial n minus 2, तो हम न्यूमरेटर को n माइनस 2 पर छोड़ देंगे, इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा, 2 इंटू 1 कैंसिल होगा, क्या आया, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये 77 इक्वल्स टू। अब हम देखेंगे, दिस इम्प्लाइज n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 77 होगा, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस n माइनस 154 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, तो 154 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 154 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे 77, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 11, और इसको जो फैक्टर्स हैं उनका 2 ग्रुप बनाएंगे, 2 ग्रुप, तो 7 इंटू 2 14 इंटू 14 और 11 का 2 ग्रुप बना। चूँकि मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस है, सो 14 इज नेगेटिव, 11 इज पॉजिटिव, दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 11n माइनस 154 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज n कॉमन लेंगे, n माइनस 14
प्लस 11 कॉमन लेंगे, n minus 14 equals to 0. This implies this is common, n minus 14 into n plus 11 equals to 0. This implies n minus 14 equals to 0 और n equal to minus 11. तो नंबर ऑफ साइड निगेटिव नहीं हो सकता है, सो n equals to minus 11 is not applicable, but n equals to 14 is applicable. The number of sides of the polygon is 14. This is the answer.